Hello children, today I am starting a new subtopic of this chapter number 2. Already you studied there uh, first as equation of a tangent, how to find there of this chapter. Now next subtopic as a derivative as a rate measure. Derivative as a rate measure means what? With the respective time we have to find out. Rate measure means with the respective time we have to find. You studied there already in a 11th standard in a physics. Rate of change of displacement means it is a velocity. Suppose s is the displacement of a particle, then rate of change of displacement, that is a ds by dt of a particle, means velocity of this particle. Therefore we have to study about here ds by dt is nothing but velocity of a particle. Yes, s is a displacement and it is ds by dt means rate of change of displacement is nothing but velocity. We have to study about this. Now derivative as a rate measure means what is the particularly in a geometrical concept of that. How to find? Here if y is equal to f of x is the given function or it is the equation of a curve, okay, then a change in x from x1 to x2 is generally denoted by delta x is equal to, look here, if y is equal to f of x is the given function, it is a function y is equal to f of x, then a change in a x from x1 to x2 is generally called as or denoted as delta x, which is equal to, it is can be written as a x2 minus x1. Similarly, corresponding change, it is the symbol of similarly, corresponding change in a y is denoted by delta y, and which is equal to f of x2 minus f of x1. देखो y is equal to f of x, तो यहाँ delta y how to write? It is a change in y1 to y2, okay, and y1 it is nothing but in terms of f of x1 and it is f of x2. Therefore we have to write delta y is equal to f of x2. F of x2 means y2 minus f of x1 means y1, okay. The difference of quotient, that is
delta y upon delta x. dy by dx means a small change in a delta x. Okay, look here, as the limit delta x tends to 0, therefore we have to take the ratio. Therefore here the difference of quotient means delta y upon delta x, which is equal to f of x2 minus f of x1 upon here x2 minus x1 is called the average rate of change. This ratio is said to be as a average rate of change with respect to x. Also, geometrically, can be interpreted it is a single word, interpreted as the slope of the secant line joining the points P x1 comma f of x1 and Q x2 comma f of x2 on the graph of function. Y is equal to f of x. देखो ये इस तरह से है. Okay, it is a secant. Here is a point P, here is a Q. A P, a coordinate of that x1 f of x1 and Q x2 f of x2. Okay, it is a secant. You know the secant line. Then how to find out the slope? स्लोप ये सेकेंड लाइन का किस तरह से फाइंड आउट कर देंगे? डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट. यस, मीन्स स्लोप ऑफ सेकेंड विच इज इक्वल टू f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1. ये सेकेंड है ऑन दिस कर्व. इट इज y इज इक्वल टू f of x. ओके, तो ये ग्राफ है उसी का. And it is nothing but average rate of change with respect to x. ये geometrical interpretation है. अभी देखो ये जो है the average rate of change over smaller and smaller intervals by taking means ये x2 जो है या तो x1 जो है reaches up to x2 और x2 reaches to x1. जो भी है ये क्या है? स्मॉल चेंज है. देन वी हैव टू टेक इट इज अ डेल्टा एक्स. वी हैव टू टेक डेल्टा एक्स and if we take the limit as delta x tends to 0 means you have to take here limit delta x tends to 0 which is equal to limit as delta x tends to 0 मीन्स x2 क्या हो रहा है? x1 तक रीच हो रहा है. x2 इज रीचिंग टू x1 मीन्स इट इज अ स्मॉल पीरियड गैप और स्मॉल इंटरवल इज देयर. ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ लिखेंगे. वी हैव टू राइट हियर इट इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. कंसिडर
average, consider the average rate of change over a smaller and smaller intervals by taking x2 approaches x2 approaches to x1, and therefore it is delta x. ये क्या है? डेल्टा x है. टू अप्रोच 0, द लिमिट, आपके बुक में ये फिगर नहीं दिया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, द लिमिट ऑफ दीज average rates of change is called the instantaneous rate of change, is called the instantaneous rate of change. This rate of change is called as a instantaneous rate of change of y with respect x. With respect to x at x is equal to x1. तो देखो ये x2 x1 तक आना है, राइट. एट x2 क्या हो जाएगा? x1 तक आ जाएगा. तो इसी को, ये जो है इंटरवल, therefore it is a delta x to approach 0. ये डेल्टा x x2 टू x1 मीन्स x2 माइनस x1, इसी को हमने क्या कंसिडर किया है? डेल्टा x. और ये डेल्टा x कहाँ तक अप्रोच हो जाएगा? 0 तक. मीन्स x2 बिकम्स एज अ x1. x2 बिकम्स टू x1. x2 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा. तो ये जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो चेंज है y में भी चेंज हो जाएगा. f of x2 becomes to f of x1. It is a rate of change and it is a instantaneous rate of change of y. y में भी सडनली चेंज हो जाएगा with respect to x at x is equal to x1. ओके, तो ये किस तरह, मीन्स जो भी चेंज हो जाएगा, मीन्स ये दोनों पॉइंट क्लोज टू क्लोज आ जाएंगे. मीन्स ये दोनों पॉइंट एक क्लोजर हो जाएगा. एंड एट दिस पोजीशन मीन्स यहाँ कहाँ तो हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दिस सेकेंड बिकम्स एज अ टेंजेंट. दिस बिकम्स एज अ टेंजेंट. ये सेकेंड क्या हो जाएगी? दिस सेकेंड लाइन बिकम्स एज अ टेंजेंट लाइन. ओके, which is interpreted
as the slope of a tangent. Slope of a tangent, I'm writing in a short, to the curve. To the curve. Y is equal to f of x at p x1 f of x1, and it is given as तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो भी है वो किस तरह से लिख सकते हैं? इट इज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. Therefore, instantaneous rate of change is equal to, ये क्या है? लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x as डेल्टा x tends to 0, which is equal to limit x2 tends to x1 of f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. अभी यही लिमिट क्या हो जाएगा? दिस बिकम एज अ डेरिवेटिव. यही क्या हो जाएगा? दिस बिकम एज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू x1. ओके. अभी गिवन पॉइंट अगर बोला है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a अगर बोला है तो ये किस तरह से हो जाएगा? सिर्फ x की जगह हम a लिखेंगे. ओके. Now some solid examples are given in your book. You have to look there. Some solid examples. ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था उसी का. आपके बुक में इस तरह से नहीं लिखा है कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, बट इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दैट. थोड़ा सा डेरिवेटिव के इसी में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था. दिस बिकम एज अ टेंजेंट, सेकेंड बिकम एज अ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ अ y in terms of x. Okay. So some solid examples are there, and these examples are important. Now next point is velocity, comma, acceleration and jerk. It is a from new syllabus, or in a new syllabus this point is added here. What is the jerk? Up to velocity and acceleration, up to it is in a old syllabus, but this concept of jerk, it is a new, and which is the additional in a new syllabus, right? तो देखो मैं सिंपली आपको बता रही है, जिस तरह से बुक में है उस तरह से नहीं बताएगी. लेट इफ एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फंक्शन और अ पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये जो पार्टिकल है ये मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. तो एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फंक्शन. ये एस is equal to f of t. It is the displacement of a particle and it is moving in along a straight line. Then f dash of t is equal to, means क्या रहेगा? f dash of t which is equal to ds by dt, and it is nothing but velocity of a particle, means rate of change of displacement yes with respective time. Rate of change of displacement with respect to time t, it is nothing but f dash of t, and it is said to be as a velocity of a particle.
Yes, therefore you have to write f dash of t is equal to, wait, here if s is equal to f of t is the displacement of a particle, या तो फंक्शन बोल सकते हैं f of t, it is a function, but in terms of displacement we have to consider s is equal to f of t is the displacement of a particle, of a moving particle, of a particle that moves along a straight line. In a short, I am writing est, then f dash of t is the rate of change of displacement yes with respect to the time t, or f dash t is the velocity of the particle. And it is given as s is equal to f of t. If we differentiate with respect to t, means with respect to t, tan t, ds by dt, it is a f dash of t, and which is we have to consider as a velocity of a particle. It is a v. The speed of the particle is the absolute value of the velocity. That is a f dash of t. Speed means क्या है देख लो, the speed of the particle is the absolute value of the velocity, that is a f dash of t. Now rate of change of velocity is nothing but acceleration, right? Then acceleration, I am directly writing here, rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration. Okay, that is dv by dt. It is denoted by acceleration a, okay, and which is equal to, it is d2s by dt square. It is nothing but d2s by dt square. आपके बुक में थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, वहाँ dy by dt दिया है, dv by dt लिखना है. ओके, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन. और इसी को ही हम v डैश ऑफ t भी कंसिडर कर सकते हैं. इट इज अ v डैश ऑफ t.
After that, jerk, now jerk means what? Rate of change of acceleration is nothing but jerk. Rate of change of acceleration is nothing but jerk and it is denoted by small j. ये किससे डिनोट होता है? j. Okay, therefore j is equal to, it is dA by dt, or we have to write which is equal to d by dt, or you have to write d2 v by dt square, or you have to write d cube s by dt cube. Okay, it is the definition of jerk or how to find out jerk. Are you getting? Jerk means a sudden change in acceleration. A jerk means a sudden change in acceleration. With respect to time. या तो ये किससे होता है? Some fault is if in a vehicle have some fault or some क्या बोलते हैं, अगर व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसी को वो सडनली क्या होता है, इंटरप्शन आ जाता है, राइट. मीन्स जर्क मीन्स अ सडन चेंज इन एक्सेलरेशन. कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो जर्क क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज two subtopics, means equation of tangent and normal, and the second subtopic as a rate measure. By using these two concepts we have to solve the exercise 2.1. now I am starting here examples on the basis of these two subtopics. Okay, exercise 2.1. First example, or listen children, or look children in a book. Here totally 16 examples are there, but in a first example there are 7 sub examples, and after that 15 examples are there. First example find the, तो मैं सभी एग्जाम्पल नहीं लेगी आपको. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है. टू द curve at the point on it. First example, that y is equal to x square plus 2 into e raised to x plus 2 at 0, 4. Okay, point is given, equation of curve is given. Okay, solution how to solve, look there. तो देखो ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो थोड़ा सा आप पीछे जाकर देखोगे हियर हाउ टू सॉल्व, तो किस तरह से सॉल्व करना है. तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया है. गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व इज
y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2 and point P x1 y1 it is given as 0 4. ये सभी लिखना है. ओके, देन equation of curve we have to differentiate with respect to x. Therefore write down differentiate with respect to x dy by dx which is equal to, अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेगी कि किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. Therefore dy by dx at the point, here point is given as p 0 4 which is equal to 2 x का वैल्यू 0 ओके प्लस 2 e रेज टू 0 which is equal to, देखो ये 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू e रेज टू 0 that is a 1 which is equal to 2. Therefore dy by dx at a given point p 0 4 it is a 2 and it is nothing but slope of a tangent. It is nothing but slope of a tangent at a given point to the curve. Okay, तो डायरेक्टली मैं लिखेगी यहाँ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आई एम राइटिंग एज इट इज m1. Then a slope of a normal, directly I am writing slope of a normal. नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसी का नॉर्मल का स्लोप आई एम कंसिडरिंग इट इज m2. देन तो ये जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ अ नॉर्मल जो होता है ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है. देयरफॉर विच इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा -1/2. तो इसी का रेसिप्रोकल लेना है. नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करते वक्त जो भी टेंजेंट का स्लोप होता है उसी का रेसिप्रोकल लेना है एंड गिव द अपोजिट साइन. अपोजिट साइन लिखना है बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1. ओके, now equation of tangent is, देखो therefore equation of tangent is by using slope point form. y minus y1 is equal to m, तो यहाँ m इंटू एक्स माइनस x1. तो यहाँ m मीन्स m1 ले लेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, m1 इज 2, x माइनस x1 इज 0. तो ये y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2x इम्प्लाइज, अभी ये इधर शिफ्ट कर देंगे 2x माइनस y प्लस 4 is equal to 0. It is the equation of a tangent. उसी तरह से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर देंगे हैविंग स्लोप -1/2. तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ m1 की जगह m2 डालेंगे. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, यही स्लोप पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 इज 4, m2 इज -1/2, x माइनस x1 इज 0. ये 2 इधर शिफ्ट कर दो, 2y माइनस 8 विच इज इक्वल टू -x. ओके, अभी ये x इधर शिफ्ट कर दो, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल. ओके,
देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने ये किया है, रिड्यूस करके लिखा है, तो थोड़ा सा आप प्रॉपरली लिख दो। ओके, नाउ राइट डाउन सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट का ही सेकंड एग्जाम्पल। वेट, और सेकंड एग्जाम्पल बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो। आई एम नॉट टेकिंग, इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल। जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वही मैं ले लूँ। आई एम टेकिंग हियर एग्जाम्पल नंबर 4, सेकंड थर्ड आप सॉल्व करोगे। यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3। मैं फोर्थ ले रही है एग्जाम्पल नंबर 4, 2xy प्लस पाई sin y which is equal to 2 pi at 1 pi by 2. Okay, solution given equation of curve is, it is a 2xy plus pi sin y which is equal to 2 pi, and here point P x1 y1 it is given as a 1 pi by 2। ये सब लिखना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स है तो आपको लिखना ही है। अब इसी को क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, we have to differentiate with respect to x, therefore differentiate with respect to x, therefore you have to write here d by dx of, या तो अभी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड चैप्टर है ये, तो मैं डायरेक्टली लिखेगी। 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो ये 2x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, 2 इज अ कांस्टेंट, एक्स वाई का डेरिवेटिव लिख दो, तो ये 2x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस अभी ये 2y एज इट इज, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज अ 1 प्लस ये पाई एज इट इज साइन y, पाई कांस्टेंट है, साइन y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos y इंटू dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। RHS में 0 आ जाएगा बिकॉज RHS कांस्टेंट है। नाउ dy बाई dx के टर्म कलेक्ट कर दो, dy बाई dx टेक एज अ कॉमन 2x प्लस पाई इंटू कॉस y विच इज इक्वल टू, देखो ये टर्म मैं इधर शिफ्ट कर रही है, -2y, देयरफॉर dy बाई dx which is equal to -2y upon 2x plus pi into cos y. Okay, then dy by dx at p 1 pi by 2 and it is nothing but slope of a tangent। यही क्या है हमारा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है एट अ गिवन पॉइंट विच इज इक्वल टू ये -2
y की वैल्यू कितनी है, y इज पाई बाई 2 अपॉन ये 2, x की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू कॉस पाई बाई 2, y इज पाई बाई 2। अभी देखो cos पाई बाई 2, cos 90 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये माइनस 2 पाई बाई 2 अपॉन 2। तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ आपका जो भी आंसर आ जाएगा, देख लो स्लोप क्या आ जाएगा, इट इज माइनस पाई बाई 2, इट dy by dx at 1 pi by 2, it is a minus pi by 2 and which is equal to slope of a tangent at a given point. It is a slope of a tangent at a given point. Okay? अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल हम किस तरह से ले लेंगे, इसी का रिवर्स रेसिप्रोकल लेना है एंड अपोजिट साइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज विच इज इक्वल टू, आप इसी को m1 लिख सकते हो, इसी को m2 लिख सकते हो, तो ये 2 अपॉन पाई, इसी का रिवर्स लिखना है या रेसिप्रोकल लिखना है बट अपोजिट इन अ साइड, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, तो पॉइंट हमारे ये है 1 एंड पाई बाई 2, तो ये y माइनस y1 इज अ पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू m1 क्या है, माइनस पाई बाई 2, x माइनस x1 इज अ 1। सिंप्लीफाई कर दो इसी को, ओके इसी को सिंप्लीफाई करना है तो किस तरह से आ जाएगा देख लो, देखो इसी को किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 हटा देंगे, 2y माइनस पाई विच इज इक्वल टू ये माइनस पाई 2 कॉमन ले लेंगे ना, इंटू एक्स माइनस 1, देन ये 2y माइनस पाई विच इज इक्वल टू माइनस पाई एक्स प्लस पाई। अभी ये टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा प्लस 2y, ओके, और ये पाई या तो ये पाई इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ये पाई इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये सिर्फ टर्म मैंने इधर लिया है। इट इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या था, 2 अपॉन पाई इज, स्लोप पॉइंट फॉर्म में ही यूज करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ m2 लिखेंगे, हैविंग m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई x माइनस x1, y माइनस y1 इज अ पाई बाई 2, m2 इज अ 2 अपॉन पाई x माइनस 1। अभी इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो किस तरह से करोगे, हाउ टू डू, तो देखो ये पहले मैं इस तरह से लिखेगी, ये 2y माइनस पाई अपॉन 2 विच इज इक्वल टू ये 2 अपॉन पाई इंटू एक्स माइनस 1, ओके। अभी इसी को फिर से सिंप्लीफाई करना है, इम्प्लाइज, देख लो ये किस तरह से सॉल्व होगा,
आपको नहीं आता है तो आप किस तरह से करोगे। ओके, तो थोड़ा सा ये मैं पाई इधर शिफ्ट कर देगी तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये 2 इधर शिफ्ट कर देगी। आई एम राइटिंग हियर पाई इंटू 2y माइनस पाई, और ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो देख लो 2 पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये x में इधर शिफ्ट कर देगी। आई एम राइटिंग हियर 4x, इट इज अ माइनस 4x प्लस 2 पाई y, और ये भी टर्म इधर शिफ्ट कर देगी माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और सॉरी, ये टर्म रह गया है नहीं, ये तो टर्म लिया है मैंने, 4x तो ले लिया है, माइनस पाई वाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर रह गया है इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं क्या कर देगी, माइनस कॉमन ले लेगी 4x प्लस 2, सॉरी माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा 2 पाई वाई, माइनस कॉमन लिया है ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी के लिए हम एक ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल।